Good morning, children. Welcome to today's computer class. Last week we learned how to create a query. What are queries? Queries are also objects like tables in the database. That is, in Access we have an object called query where you can extract or retrieve data from a single table or from the multiple tables using a single condition or multiple condition. Last week we saw about creating queries with single condition from a single table. Already I have said that in this chapter we are going to see only queries with single table. In your higher classes you will learn how to retrieve data from multiple tables. Okay, if time permits I will teach you later on. Otherwise we are going to see only about single table queries in this chapter. Okay, so using queries you can extract data, that is using particular criteria. If you impose some criteria to your table, आप अपने टेबल को ले लीजिए, उसमें अगर कुछ क्राइटेरिया आप सेट कर देंगे, सो क्वेरी में क्या होगा, व्हेन यू जनरेट अ क्वेरी ऑन योर टेबल this criteria will be applied and only those records will be shown to you which meet those criteria. ठीक है, so that is what we have seen last week. I hope you all understood and went through all the videos and understood those concepts. Okay, today we are going to see how to create a query with multiple conditions and you will find it in page number 53. So open page number 53 of your course book, children. So there are various ways in which we can create queries with multiple conditions. What are the various ways? Out of the various ways we are going to discuss only two of the ways. Okay, first one is specifying the condition for more than one field in the criteria row. Criteria row में पिछले बार हमने सिर्फ एक फील्ड में कंडीशन इम्पोज किया था, दैट इज कंडीशन हमने स्पेसिफाई किया था एक सिंगल फील्ड में. वहाँ पे अगर मोर देन वन फील्ड में अगर आप कंडीशन लिखेंगे देन दैट विल लीड टू मल्टीपल कंडीशन क्वेरीज. ओके, सो क्राइटेरिया स्पेसिफाइड दिस वे आर कंबाइंड यूजिंग द एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है? एंड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट विल हैपन इफ़ यू यूज़ द एंड ऑपरेटर. If I say that I want apples and oranges, उसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपको बोला I need apples and oranges and grapes, इसका मतलब क्या होता है? I need all of these three fruits. इसमें से कोई एक भी मिस होगा then I will not accept it. यही मतलब होता है ना एंड ऑपरेटर का. So that is what we are going to use here. The criteria specified this way or combined. सारे कंडीशंस जब मीट होंगे, उसमें से एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं होगा, दैट इज़ एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा, देन दोज रिकॉर्ड्स विल नॉट बी शोन टू यू. ठीक है, सो इट विल डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स दैट मीट ऑल द कंडीशंस. अगर आपने तीन फील्ड में कंडीशन डाला तो तीनों फील्ड में जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जो भी कंडीशंस आपने लगाया वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा, ओनली देन दोज रिकॉर्ड्स विल बी शोन टू यू. ओके, तो अभी हम अपने जो बुक्स वाला टेबल हमने लास्ट वीक क्रिएट किया था उसी को एज अ रेफरेंस हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में. टू रिट्राइव द डिटेल्स ऑफ बुक्स वेयर प्राइस इज़ मोर देन 500. लास्ट वीक हमने सिर्फ प्राइस मोर देन 500 देखा था, बट वी आर गोइंग टू यूज़ वन मोर कंडीशन हियर. जॉनरी is humor. Okay, what's going to be the genre? It is going to be humor. The category is going to be humor. Okay, so notice the criteria specified in the book price and book genre fields. They are going to be interpreted as book price is greater than 500 and the book genre is going to be equal to humor. Again you have to note that since humor is a text, you have to enclose it between inverted quotes. Inverted quotes के अंदर आपको ये humor को लिखना. You may use either double inverted quotes or single inverted quotes. That is not going to make any difference, but आपको इस humor word को inverted quotes के अंदर ही specify करना होगा. Okay, since 500 is a number, no need to enclose it inside the inverted quotes. उसको आप directly लिख सकते हैं. Okay, so let us go to our next page where you will find this is where we are going to impose our condition. Criteria field में this is our criteria क्राइटेरिया रो में आप देखेंगे बुक प्राइस में भी आपने कंडीशन डाला है और बुक जॉनरी में आपने कंडीशन डाला. यहाँ पे आपने ग्रेटर देन 500 लिखा और यहाँ पे आपने
इनक्लोज किया है कोट्स के अंदर ह्यूमर को. So only those records that will meet the condition where the category or where the book price is going to be greater than 500 and the book genre is going to be humor. Okay, only those books will be shown to you, and according to our table only one book is going to be shown to us, because only this book, Three Men in a Boat, is going to be with the price 675 which is greater than 500 and it belongs to the category humor. ठीक है, इसका genre क्या है? Humor. So this is given in figure 3.7, the query and its result. So let us work it out and find whether it is working properly. तो ऑलरेडी हमारा बुक्स का टेबल पहले लास्ट वीक हमने जो देखा था वो बना है. लेट अस क्विकली क्रिएट द क्वेरी विथ मल्टीपल कंडीशंस. लेट अस क्लिक ऑन क्रिएट. अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द क्वेरी डिज़ाइन. खैर मैंने आपको क्वेरी विज़ार्ड भी लास्ट वीक बताया था, बट अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द क्वेरी डिज़ाइन. व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू फर्स्ट ऐड द टेबल. यहाँ पे जो टेबल है आपके पास एक सिंगल टेबल है, सो यू आर गोइंग टू ऐड दिस टेबल. Afterwards you have to close this box. तो यहाँ पे आपकी टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं सारे दिखाई दे रहे हैं. आई वुड सजेस्ट यू टू ऐड ऑल द फील्ड्स. यहाँ पे आपके बुक में अगर आप देखेंगे सिर्फ 3 फील्ड्स, बुक नेम, बुक प्राइस एंड बुक जॉनरी ऐड हुआ है, बट यू कैन ऐड ऑल द फील्ड्स. इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू शो दोज फील्ड्स ऑन द क्वेरी और नॉट. इसलिए आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सारे it has been used twice. Okay, so let us, ऐसे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वही सेम फील्ड आपका यूज़ होता जाएगा. सो यू कैन जस्ट क्लिक इट हियर एंड यू कैन सेलेक्ट. अगर आपका डबल टाइम क्लिक हो जाता, नो नीड टू वरी, फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट इट. नाउ ऑन द थर्ड फील्ड यू आर गोइंग टू सेलेक्ट बुक प्राइस and then you are going to select the book genre, and that is the book category and the book author. Next you are going to add the book author. आप ड्रैग करके भी ड्रॉप कर सकते हैं. मैं लास्ट वीक आपको करके दिखा चुकी हूँ. और आप उसको डबल क्लिक करेंगे ऑन, इवन देन योर फील्ड्स विल बी एडेड टू द क्वेरी. अब सॉर्ट में हमने कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रखा. आपका फर्स्ट रो में क्या रहता है, फील्ड रहता है. सेकेंड रो में किस टेबल को वो बिलोंग करते हैं वो शो होता है. थर्ड रो में आपकी सॉर्टिंग ऑर्डर रहता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड देन यू हैव द शो. यहाँ पे अगर आप बुक आईडी को नहीं शो करना चाहते आपकी क्वेरी में, देन यू कैन अनचेक दिस बॉक्स. इन द सेम वे इफ़ यू डोंट वांट टू शो द ऑथर नेम, देन यू कैन अनचेक दिस. तो अब आपका कितने फील्ड्स शो होंगे वहाँ पे, बुक नेम, बुक प्राइस एंड बुक जॉनर. ओके, नाउ यू आर गोइंग टू ऐड द क्राइटेरिया. अब हम 2 क्राइटेरिया ऐड करेंगे. एक बुक प्राइस क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 500, एंड द बुक कैटेगरी और द बुक जॉनर हैज़ टू बी is to be equal to humor. Okay, so you have to write humor here. Now when you try to execute your query, you will find that only one book is shown to you. Let us save this query and see why other books are not shown. हमारे पास humor कैटेगरी की बहुत सारे बुक्स थे, लेकिन वो बाकी बुक्स हमारे क्यों नहीं यहाँ पे आए. ओके, लास्ट वीक तो हमारे सारे 500 के ऊपर जितने बुक्स थे वो सारे शो हुए थे. यहाँ पे भी हमारा ग्रेटर देन 500 है, बट हमने यहाँ पे एक और कंडीशन इसमें इम्पोज किया है, दैट बोथ द बुक प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 500 एंड द कैटेगरी मस्ट बी ह्यूमर. ठीक है, सो लेट अस सेव आवर क्वेरी. नो नीड टू रीनेम द क्वेरी, लेट इट बी क्वेरी 1. ओके, नाउ गो टू योर टेबल एंड यू विल फाइंड there are 3 books related to humor. एक यहाँ पे है, this book is less than 500, so this book is not shown to you, and you have one more book here which is related to humor, that is this fan girl, which is also less than 500. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, when you use and condition, only when all the conditions are met. आपने 2 कंडीशन इसमें यहाँ लगाया था, जब वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए, किस रिकॉर्ड में आपका सेटिस्फाई हुआ, इस रिकॉर्ड में 3 Men in a Boat में क्या हुआ, आपके बुक प्राइस भी 500 से ज़्यादा है और उसका कैटेगरी भी ह्यूमर को बिलोंग करता है. ओके, दैट इज़ वाई ओनली दिस सिंगल रिकॉर्ड इज शोन टू यू. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ अवर अदर वे ऑफ क्रिएटिंग द
multiple condition query. You will find this in page number 54. Okay, specifying the condition in the criteria row or row and the rows beneath it. Okay, कंडीशन रो में एक कंडीशन आप स्पेसिफाई करेंगे, फिर एक और रो में, ये देखिए ये आपका और रो है. ओके, आई होप यू ऑल कैन सी दिस इज योर और रो. ओके, एंड द रोज बेनीथ इट, बेनीथ मतलब उसके नीचे. तो आप क्या करेंगे, ऐसे एक रो के नीचे एक रो में आप कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे. सो ऐसे कंडीशन स्पेसिफाई करने से क्या होता है, क्राइटेरिया स्पेसिफाइड दिस वे और कंबाइंड यूजिंग दी और ऑपरेटर. और का मतलब क्या होता है, और यू आर गिविंग एन ऑप्शन. आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं तो इधर और चॉइस आता है आपके पास, या तो ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे या फिर वो क्वेश्चन अटेंड करेंगे. ओके, इन द सेम वे इफ आई एम गोइंग टू से आई नीड एप्पल्स और ऑरेंजेस और ग्रेप्स, यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, आप अगर एप्पल्स ले आएंगे इवन देन इट इज़ एक्सेप्टेबल. सिर्फ आप ऑरेंज ले आएंगे देन ऑल्सो इट इज़ एक्सेप्टेबल. अगर आपको एप्पल और ऑरेंज नहीं मिला, सिर्फ आप ग्रेप्स ले आएंगे इवन देन इट इज़ एक्सेप्टेबल. तो और का मतलब है जितने कंडीशन आपने स्पेसिफाई किया उसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गया देन द रिकॉर्ड्स विल बी शोन टू यू. ओके, सो इट डिस्प्लेस द रिकॉर्ड्स दैट मीट वन और मोर ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस. एक या उससे ज़्यादा जितने भी कंडीशंस, उसमें अगर एक भी सेटिस्फाई होगा इवन देन योर रिकॉर्ड्स विल बी शोन, या दो कंडीशन भी उसमें से सेटिस्फाई हो जाएंगे इवन देन योर रिकॉर्ड्स विल बी शोन. सो दिस इज़ द और ऑपरेटर. सो एक एग्जांपल आपका यहाँ पे बुक में दिया गया, टू रिट्राइव द डिटेल्स ऑफ द बुक्स वेयर द प्राइस इज लेस देन 500. यहाँ पे हम मोर देन 500 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मोर देन 500 और कैटेगरी ह्यूमर में तो आपके पास ऑलरेडी एक बुक है. ठीक है, इसीलिए हम लेस देन 500 लिख रहे हैं और ह्यूमर कैटेगरी में लिख रहे हैं, या फिर द बुक नेम इज द अल्केमिस्ट. ठीक है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा देन ऑल दोज बुक्स विल बी शोन टू यू. तो आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं. आई विल शो यू हाउ टू अप्लाई दीज कंडीशंस इन द एक्सेस डेटाबेस नाउ. उसके पहले आप यहाँ का रिजल्ट देख लीजिए. ओके, द अल्केमिस्ट बुक तो आपने ढूंढा था बाय नेम, तो वो अपीयर हुआ है यहाँ पे. और यहाँ पे देखिए जो विंगर होता है वो ह्यूमर है और लेस देन 500 है. और 3 Men in a Book का प्राइस तो अबव 500 है बट इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ह्यूमर, इसीलिए ये भी आपका अपीयर हुआ है. एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में वो मोटिवेशनल बुक है लेकिन प्राइस कितना है, दैट इज़ लेस देन 500. एंड फैन गर्ल में ह्यूमर को भी बिलोंग करता है और प्राइस भी 500 से. यहाँ पे दो कंडीशन आपका सेटिस्फाई हुआ. तो आपने जो भी यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई किया उनमें से अगर एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हाउ टू विन फ्रेंड्स में सिर्फ बुक प्राइस का कंडीशन मीट हुआ है. ओके, एंड विंगर में क्या हुआ, दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है, बुक प्राइस इज लेस देन 500 एंड इट बिलोंग्स टू द जॉनर ह्यूमर. ओके, एल्केमिस्ट में बुक प्राइस भी कम है और जो नेम बुक नेम से आपने सर्च किया वो भी आपको मिला. सो दिस इज़ हाउ you will specify the multiple conditions which will be combined using the OR operator. Okay, so now we shall specify these criteria in our access database. book name पे हम लिखेंगे The Alchemist inside inverted quotes and you may find that it is written single quotes. यहाँ पे आपको ये दिखाने के लिए किया गया that you may use either single quotes or double quotes. यहाँ पे देखिए ह्यूमर को डबल कोट्स के अंदर लिखा है और अल्केमिस्ट को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है. सो यू मे यूज either single quotes or double quotes to specify your text conditions. ओके, और बुक प्राइस तो एज यूजुअल यहाँ पे विदाउट एनी कोड स्पेसिफाई किया गया. So let us do it quickly in our access database. So again I'm going to create a query using query design and I'm going to add the table. Okay, now this time I will show you how to drag and drop. देखिए यहाँ पे drag and drop किया, फिर से यहाँ पे drag and drop. So ऐसे आप drag and drop करके भी अपने fields को add कर सकते हैं. ओके, डबल क्लिक करके मैंने आपको लास्ट क्वेरी में दिखाया था. नाउ वी आर गोइंग टू शो ओनली दोज फील्ड्स विच वी वांट.
बुक आईडी हमें नहीं चाहिए और बुक ऑथर नेम वहाँ पे क्वेरी में नहीं चाहिए. इफ़ यू वांट यू कैन टिक हियर. अगर इसको चेक कर देंगे तो ये फील्ड्स भी आपकी क्वेरी में शो होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द फर्स्ट क्राइटेरिया. वेयर इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया? आपके बुक में आप देखेंगे फर्स्ट क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा है? क्राइटेरिया रो में बुक प्राइस में लेस देन 500 में लिखा है. देयर इज़ नो पर्टिकुलर ऑर्डर. आप अल्केमिस्ट को भी क्राइटेरिया में लिख सकते हैं और रो में 500 को भी लिख सकते हैं और बुक जॉनर में ह्यूमर को लास्ट रो में लिख सकते हैं. दैट इज़ अप टू यू. ओके, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है. आई विल चेंज द ऑर्डर एंड शो इट टू यू. पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज़ कर रही हूँ. ओके, द अल्केमिस्ट. और ये हमारा क्राइटेरिया रो में हो गया. नेक्स्ट रो में क्या हो जाएगा? अगर इसी रो में आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? एंड ऑपरेटर हो जाएगा. सो always remember, if you want to use the or operator then you have to specify the criteria one below the other. अदरवाइज वो सबको एंड ऑपरेटर से कंबाइन करके जब तक ये सारे क्राइटेरिया आपकी सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आपकी रिकॉर्ड शो नहीं होंगे. सो इन दी और क्राइटेरिया आई एम गोइंग टू राइट लेस देन 500 और उसके नीचे वाले रो में मैं क्या लिख रही हूँ? बुक जॉनर क्या होगा? इक्वल टू ह्यूमर. दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज डबल कोट्स हियर. ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. तो अब हम ये तीनों कंडीशन लगा चुके हैं. क्राइटेरिया रो में हमने इक्वल टू अल्केमिस्ट लिखा बुक नेम में. सो बुक नेम मस्ट बी इक्वल टू अल्केमिस्ट और बुक प्राइस मस्ट बी लेस देन 500 और द बुक जॉनर मस्ट बी इक्वल टू ह्यूमर. इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा द रिकॉर्ड्स आर गोइंग टू बी शोन टू यू. सो लेट अस नाउ रन आवर क्वेरी एंड सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिजल्ट. ओके, देखिए आपके बुक में जो भी आंसर आया है वही आंसर यहाँ पे भी आया. द अल्केमिस्ट तो आया है, उसके बाद ये जो विंगर है वो ह्यूमर और लेस देन 500 है. फ्री मैन इन अबाउट अबव 500 है बट इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ह्यूमर इसीलिए आया है. और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जो है मोटिवेशनल है बट इट इज़ लेस देन 500 इसीलिए शो हुआ है. एंड फैन गर्ल लेस देन 500 भी है और ह्यूमर में भी बिलोंग करता है. That's why it is shown to you. So this is how you specify multiple conditions in your database. I hope this is clear. Please try to execute this in your computer children. जो जिनके पास कंप्यूटर है एटलीस्ट वो बच्चे इसको करके देखिए. Until and unless you have practice on your work, you will not find it easy to remember. Okay. Now you have a snap check here given in page number 55. Okay, so based on this table doctor, यहाँ पे एक टेबल दिया गया which is about the doctor table. डॉक्टर का कोड दिया गया, नेम, स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर फीस एंड डॉक्टर डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया गया. So based on this there is a query doctor. Okay, what records will be displayed when the query is executed? तो आपको इसका आंसर बताना है. आई विल गिव यू द आंसर्स इन द इवनिंग. उसके पहले आपको ये बताना है अगर इस क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके क्या क्या रिकॉर्ड्स शो होंगे. यहाँ पे आप देखिए क्राइटेरिया रो में डर्मेटोलॉजिस्ट दिया है और रो में क्या दिया गया? फीस मस्ट बी ग्रेटर देन 1000. तो यहाँ पे और कंडीशन यूज़ हो रहा. आइदर द डॉक्टर स्पेशलाइजेशन मस्ट बी डर्मेटोलॉजिस्ट और द डॉक्टर फीस मस्ट बी ग्रेटर देन 1000. ओके, इन दोनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो वो रिकॉर्ड शो होंगे. सो नाउ इट इज़ अप टू यू टू फाइंड आउट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर विद द फीस अबाउ 1000 एंड हाउ मेनी records or with the doctor specialization equal to dermatologist. So you will write the answer. आपको कोई टेबल फॉर्मेट में नहीं लिखना, just mention the records. Okay, what records यहाँ पे पूछा है. So no need, no, you should not give the number of records. क्या क्या records यहाँ पे शो होंगे. Okay, so you may write the doctor code and doctor name. ये दोनों आप शो करा सकते हैं. Okay, query में आप ये देखिए शो में क्या क्या शो हो रहा है? डॉक्टर कोड, डॉक्टर नेम, स्पेशलाइजेशन, डॉक्टर फीस, सारे शो होना है. डॉक्टर
डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं शो करना हमें, वो क्वेरी में हमने इंक्लूड नहीं किया. So you may either make a table and show me the answer or just mention the answer specifying the doctor code and doctor name. Okay children, if you want to exactly represent the query how it will be displayed, then you have to make a table. आपको ये ऐसे एक टेबल बनाना होगा जिसमें आप डॉक्टर कोड, डॉक्टर नेम, स्पेशलाइजेशन, फीस सारे शो करेंगे और उसमें से यहाँ से कितने जो रिकॉर्ड्स हैं वो फिल्टर होके आपकी क्वेरी में शो होंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये आपको शो करना है. सो कंप्लीट योर आंसर्स इन योर कॉपी एंड सेंड इट टू मी टिल इवनिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. In our next class we will discuss about forms. Thank you and have a nice day.